Going to read the story of Lion and the Mouse. शेर અને ચૂહો. Once upon a time, a lion caught a mouse and was about to eat it. એક વખત એક શેરીએ ચૂહાને પકડી લીધો. But the mouse cried out, "Please, Mr. Lion, let me go." ચૂહો કહેવા લાગો લાયને, અરે મને જવા દે. I promise you that I will help you when you are in need. મેં તને વાદો કરું છું, જ્યારે બી તને મારી જરૂરત પડશે મેં તારી હેલ્પ કરીશ, મદદ કરીશ. The lion laughed and said, લાયન તો હસવા લાગો, શેર તો અને કહેવા લાગો, "You little mouse, એ છોટા ચૂહા, what makes you think that I, the mighty king of jungle, will ever need your help?" તને શું લાગે છે મેં એટલો મોટો શેર, મને તારી જરૂરત પડશે? કારે બી નહીં. લેકિન જા, મેં તને જવા દઉં છું. Anyway, I will let you go. પછી થોડા દિવસ પછી one day the lion was caught in a hunter's nest. લાયને એક શિકારીએ પકડી લીધો એના જાલમાં. He was rolling એને બહુ દર્દ થઈ રહેલું. Hearing him, the mouse came immediately. આ સુનીને ચૂહો તરત દોડીને આવ્યો. He started nibbling at the nest. અને એ જે જાલ હતો એને ખાવા લાગ્યો. Soon the net was torn. The lion was free. તો શું થયું કે જે જાલ હતો એ ફાટી ગયો અને શેર આઝાદ થઈ ગયો. તો શેરીએ શું કીધું ચૂહાને, "થેન્ક યુ ડિયર માઉસ, યુ હેવ સેવ્ડ માય લાઈફ." તારો ઘણો ઘણો શુક્રિયા, થેન્ક યુ સો મચ, તો મારી જિંદગી બચાવી. And from that day on, the lion and the mouse became best friends. ચૂહો અને શેર अच्छा दोस्त बनी गया, बेस्ट फ्रेंड्स થઈ ગયા. તો શું શીખવા મળ્યું? ઇટ ઓલવેઝ પેઝ ટુ હેલ્પ અધર. તમે કોઈની મદદ કરશો તો લોકો તમારી મદદ કરશે. Seller decided to rest under a tree. He soon fell asleep. Many monkey came and opened the cap seller's box. They took the cap and climbed the tree. Soon the cap seller woke up. He saw the monkey wearing the cap. He clapped. The monkey also clapped. The intelligent cap seller threw all his cap on the ground and the monkey did the same. The cap seller got all the caps back. Moral of the story: there is always a way out of every difficulty. I am Numa. Start the story, beta. A tire decided soon the he saw the wearing his caps. The monkey cap seller on the the monkey did the cap seller got all the caps back. Moral of the story:
of. Very good. Nisha, today we are going to learn a story of a thirsty crow. So this is a story of a thirsty crow. One hot day, a crow was very thirsty. गर्मी का दिन था और crow को बहुत प्यास लगी थी. He looked for water here and there, but he could not find it. इधर उधर सब जगह पानी देखा पर उसको पानी नहीं मिला. After a long time, he saw a pot. बहुत देर ढूंढने के बाद उसको एक pot दिखा. But there was very little water in it and the crow could not reach the water. पानी बहुत कम था और crow उसके अंदर मुंह नहीं डाल पा रहा था. He thought of a plan. उसने एक plan सोचा. He picked up some pebbles one by one and dropped them into the pot. उसने छोटे छोटे पत्थर लिए और वन बाय वन करके पॉट में डाला. पत्थर पानी में डालने से क्या हो गया? पानी. The water came up on the top. He drank the water and flew away happily. उसने पानी पिया और happily उड़कर चला गया. He was a clever crow. So the moral of the story is, where there is a will, there is a way. जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है. हम लोग अगर कुछ करना चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. बस मन लगाकर कोई भी काम करेंगे तो हर चीज पॉसिबल है. Where there is a will, there is a way. Story's name is Dog and the Bone. See, this is dog and he's having his bone. Once a dog found a big juicy bone. Happily when he was carrying it to his home, he saw a bridge. उसने वो ना ये अपना फूड है ना अपने घर पे लेके जा रहा था. ओके, तो रास्ते में उसको रोड पे उसको क्या मिला आपको पता है? एक ब्रिज दिखा उसको, ब्रिज. और उसने उसका रिफ्लेक्शन देखा वाटर में. उसको लगा हे देयर इज अनदर डॉग. उसको लगा अनदर डॉग है एंड ही हैज अ बोन टू. और उसके पास भी सेम बोन है. इट विल बी ग्रेट. वो सोचा कि इट विल बी ग्रेट इफ आई गेट द बोन टू. उसको लगा मुझे वन मोर बोन मिल जाएगा. वो डॉगी से मैं स्टील करके आ जाऊंगा बोन. He jumped into the water, barking at the other dog. Wow, 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 wow. He jumped. As he opened his mouth, his bone fell in the water. The foolish dog lost his bone. Bone गुम गया उसका. And he came home hungry. और भूखा ही रह गया वो. उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला. बोन तो उसका रिवर में गिर गया था. The foolish dog lost his bone and went to the home hungry. Moral: never be greedy. आपको कभी लालच नहीं करनी चाहिए हितांश. जितना मिले उतने से सेटिस्फैक्शन रखना चाहिए. Today myself and Hiyansh, we are going to tell you a short story. And our story is The Goose That Laid Golden Eggs. So here we start. Once a poor man and his wife had a goose. This was a special goose because it laid a golden egg every day. एक बार एक बहुत ही गरीब हस्बैंड और वाइफ रहते हैं. उनके पास एक गूस रहता है. गूस मतलब बतख. और वो बतख बहुत स्पेशल होता है क्योंकि वो रोज एक सोने का अंडा देता है. They sold the eggs and became rich. They were very lucky and happy. वो जो बतख सोने का अंडा देता है वो बेच के वो लोग धीरे धीरे बहुत अमीर होने लगे. एंड उन लोग को बहुत खुशियाँ, उनके घर में खुशियाँ और लकी होने लगे. वो खुशियाँ आने लगी. Soon they became greedy. They thought of becoming rich faster. फिर जैसे जैसे वो अमीर होते गए वो और लालची होते गए, ग्रीडी होते गए कि हमें अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे हम और जल्दी अमीर हो जाए. So they thought of a plan. Oh, if we only can get all the golden eggs that are inside the goose. तो उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते, बतख को मार के उसके अंदर जो भी सोने के अंडे हैं वो निकाल के हम एक बार में ही अमीर हो जाते. रोज रोज एक अंडे के लिए नहीं रुकते, एक साथ में ही सब अंडे उसके पेट से निकाल लेते हैं. And so they killed the goose to get all the golden eggs. But to their shock, there were no egg inside the goose. तो उन्होंने वो बतख का पेट से चाकू से फाड़ के उसको मार दिया. बट उन्होंने देखा कि उस बतख के पेट में तो कुछ भी नहीं है, कोई गोल्डन एग नहीं, कोई सोने का अंडा नहीं मिला. वो लोग बहुत सैड हो गए कि हमें जो बतख रोज एक सोने का अंडा देती थी
उसे हमने मार दिया, अब हम कभी वापस सोने का अंडा भी हमें नहीं मिल सकता है। दे वर सैड एंड ब्रोकन। तो वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें कभी वो अमीर होने वाला सोने का अंडा कभी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ग्रीडीनेस गेट्स अस नथिंग। लालच कभी भी एक लंबा रास्ता नहीं हो सकता है, वो एक शॉर्टकट ही रह सकता है। तो हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, हमें मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करनी है, उससे ही हम सक्सेसफुल होते हैं। ओके हियांश? ओके, नाउ से थैंक यू, बाय। With the grapes and soil. One day a hungry fox saw a bunch of grapes hanging high on the wheels. His mouth started watering. He jumped to reach the grapes. He jumped and jumped but could not find the grapes. One day a hungry fox saw a bunch of grapes hanging high on the wheels. His mouth started watering. He jumped to reach the grapes. He jumped and jumped, but could not reach the grapes. One day, a dog was happily walking towards the river. He had just found himself a nice juicy bone. As soon as he reached the river, he saw his reflection. He thought that dog has another bone. I will get it from him. The greedy dog opened his mouth to bark and the bone fell into a river. Moral: there's always a way out of every difficulty. Never be greedy. कुछ भी तो नहीं। Hot summer day, ठीक है, और thirsty crow was looking for a water. What? At last he saw a tall pot with very little water. He tried to drink but could not reach the water. Got it? He saw some stones nearby. He collected them and dropped them into the pot. The water comes up. The crow drank the water and flew away happy. Fox. A fox was very cunning. She was wandering in search of food. She saw a crow on a tree. It had a piece of bread in its beak. Next. She said to the crow, "Your voice is very sweet. Please sing the song." The crow opened its mouth to sing. The piece of bread fell down. The fox picked it up and ran away. Moral is, don't believe everything you hear. Thank you. Hi everyone. Good afternoon. Today's topic, short story with moral. So let's start. Story name, The Ant and the Dove. So Didi, once upon a time an ant was thirsty. एक समय की बात है, एक चींटी बहुत प्यासी थी.
So the ant went near the spring and climbed on a blade of grass. वह चींटी धीरे धीरे घास के सहारे पानी की ओर जा रही थी. When they tried to bend and reach the water, they accidentally fell into the spring and began to float. अचानक से उसके साथ एक घटना घटी और वह पानी में नीचे गिर गई. A dove on a nearby tree saw the ant in trouble. एक जो डव है वो पेड़ के ऊपर बैठा था और वो उसकी पूरी ट्रबल को देख रहा था. He quickly plucked a leaf and dropped it into the water. उसने अचानक से एक पेड़ का पत्ता तोड़ा और पानी के अंदर नीचे डाल दिया. तो the ant held the leaf and climbed up on it. और उसने आंट ने जैसे ही वो लीफ का पत्ता देखा वो उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई और उसके ऊपर धीरे धीरे से अपने सहारे रास्ते पे आ गई. द हैप्पी आंट रीच द ग्राउंड सेलिंग ऑन द लीफ एंड थैंक द डव. वो उसके सहारे ग्राउंड की ओर आ गई और उसने डव को थैंक्स बोलना चाहा. फिर जस्ट देन द आंट saw a hunter aiming his arrow at the dove. फिर कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि एक जो हंटर है वो अपने एरो से डव के ऊपर निशाना लगा रहा होता है उसको मारने के लिए. तो द आंट अंडरस्टूड दैट द डव वाज इन ट्रबल. तो वो आंट है उसने सोच लिया, वो समझ गई कि जो हंटर है वो डव को मारना चाह रहा है. तो शी rushed टू द हंटर एंड bit him on his leg. तो हंटर के पास गई और उसके लेग पे जाकर के जोरदार से बाइट कर लिया. उसने हंटर ने जोर से आवाज़ लगाई आउच. फिर cried the hunter, he bent down and the hunter bent down, he rubbed his leg. उसने बाइट कर लिया तो वो धड़ाम से नीचे गिर गया. उसने पैर को देखा. The dove heard the hunter's voice and flew away. और जैसे ही उसने आवाज़ लगाई और चीखने चिल्लाने लगा और डव ने देखा कि There lived a mouse at the foot of a big mountain. Every day the mountain saw with a pity a small creature running here and there. एक छोटा सा माउस एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे इधर से उधर भागता है. तो माउंटेन उसको देख के बोलता है ये तो बहुत छोटा है, जब भी देखो इधर से उधर भागते रहता है. One day, as the mouse emerged from his hole, the mountain said, "You poor creature, how small you are." एक दिन जब माउस पहाड़ के एक होल में से बाहर निकलता है तो माउंटेन बोलता है तू गरीब कुदरत का माउस, कुदरत ने बनाया हुआ माउस, तू बहुत छोटा है. The mouse replied, "What is the problem with my size?" माउस बोलता है कि मैं छोटा हूँ तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको. The mountain said, "See how big I am. I can withstand and big winds and clouds kneel before me." माउंटेन बोलता है मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा रह सकता है, हवा भी नहीं खड़ी रह सकती है, क्लाउड्स भी नहीं खड़े रहते हैं, क्लाउड्स भी मेरे नीचे रहते हैं. He added, "Big things have big advantage." वो बोलता है बहुत बड़ी चीज़ों के बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं. The little mouse said humbly. माउस बोलता है बहुत प्यार से बोलता है, "Yes, I agree, you are big, but you cannot stop me from drilling holes right at your foot." आपने बराबर बोला मैं छोटा हूँ, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकते. मैं आपके पहाड़ में बहुत सारे होल कर दूंगा ना आपके पाँव के बाजू में, तो भी आप मुझे नहीं रोक सकते. The mountain was ashamed at his pride. माउंटेन बहुत दुखी हो जाता है कि माउस बराबर बोल रहा है, मैं कितना भी बड़ा हूँ लेकिन माउस बहुत अच्छा है. Pigeon and the ant. आपको ना एक ant था, वो ना गिर गया था पॉन्ड में. Once an ant fell into the pond. He tried very hard but couldn't come out. वो ant ना वाटर में गिर गया था. उसने बहुत ट्राई किया लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया. A pigeon who was sitting on a tree. आपको ना एक tree pigeon पे sit किया था. ट्री पे ना pigeon बैठा था, तो वो सब कुछ देख रहा था ant को. हाँ pigeon. तो वो ट्री पे बैठ के सब कुछ देख रहा था. He quickly threw a leaf into the pond. उसने ना उसको ant की हेल्प करनी थी, वो बहुत हेल्पिंग नेचर वाला था ना, तो उसने क्या किया लीफ को पॉन्ड में डाल दिया जहाँ पे ant गिरा था वहाँ पे. और ant ने क्या किया, ant वो लीफ पे चढ़ गया और सेफली बाहर आ गया. Okay, the pigeon heard the scream and flew away.
उसके बाद आपको क्या हुआ, ये एंट ने, पिजन ने एंट की हेल्प की, उसके बाद आफ्टर अ वाइल डाल दिया, आफ्टर अ वाइल द एंट सॉ बॉय एमिंग द स्टोन एट द पिजन। अब उसने क्या देखा एंट ने थोड़ी देर बाद कि पिजन पे कोई स्टोन डाल रहा है कोई लड़का, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि यार मेरी पिजन ने हेल्प की थी तो मैं भी पिजन की हेल्प करूँ ना। तो एंट ने क्या किया, चिमटी काट दी बॉय को जो पिजन पे स्टोन डाल रहा था उसके ऊपर। तो एंट ने पिजन की हेल्प की, तो पहले पिजन ने एंट की हेल्प की और अब एंट ने पिजन की हेल्प की। तो क्या स्टोरी का मॉरल हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। हमेशा आपको हेल्पफुल रहना चाहिए, हमेशा आपको अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। आप करोगे हेल्प, किसकी हेल्प करोगे, आपके फ्रेंड्स कौन कौन है, हितांश भी आपका फ्रेंड है, सबकी हेल्प करोगे ना। अ फ्रेंड इन नीड इज अ स्टोरी मॉरल बोलो, अ फ्रेंड इन नीड इट इज अ फ्रेंड इंडीड। से थैंक यू। एक स्टोरी, द बॉय अँड द कॅश्यू नट्स. एकदा काय होतं, एक मुलगा असतो, त्याला ना काजू खूप आवडतात. तर तो त्याच्या मम्मीकडे नेहमी काजू खायला मागतो. त्याची मम्मी काय करते, त्याला थोडेसे काजू देते. मग तो त्याच्या मम्मीला म्हणतो की मम्मी मला अजून जास्ती काजू दे ना, एवढेसे नको देऊ. त्याची मम्मी काय बोलते त्याला, बाळा जास्ती काजू खायचे नसतात, नाही तर पोटात दुखतं आणि आजारी पडतो आपण. मग त्याला राग येतो. मग एक दिवस काय होतं की ना त्याची मम्मी बाहेर गेलेली असते काहीतरी कामासाठी. तर तो बघतो की मम्मी तर नाही आहे. तो म्हणतो चला आज मम्मी घरात नाही आहे, आज मी खूप काजू खाऊ शकतो. म्हणून तो जातो आतमध्ये किचनमध्ये, काजूची बरणी घेतो आणि खूप काजू खातो. आणि मग नंतर थोड्या वेळाने काय होतं, त्याचं पोट दुखायला लागतं आणि मग तो रडायला लागतो. नंतर त्याची मम्मी येते, म्हणते काय झालं. म्हणतो मम्मी मी ना खूप काजू खाल्ले, आता माझ्या पोटात खूप दुखतं आहे, मला खूप त्रास होतो. त्याची मम्मी म्हणते मी तुला बोललेली ना की जास्ती काजू खायचे नसतात, नाही तर तुझ्या पोटात दुखेल, पण तू ऐकत नाही, माझं नाही ऐकलं, बघ आता काय झालं. म्हणतो सॉरी मम्मी, मी आता परत असं नाही करणार, आता इथून पुढे मी तुझं ऐकेन, तू देशील तेवढेच काजू मी खाईन, जास्ती काजू नाही खाणार. मॉरल काय आहे स्टोरीचा, ऑलवेज ओबे युअर पॅरेंट्स. थोड़ा आगे गया, वो पेड़ के नीचे सो गया. जब भी ताता पीछे गया, तभी ताता जी गया और रैबिट हार गया. Moral of the story, Moral of the story, study and slow and study win the race. Hi, good afternoon. My name is Bhavika Jain. He is Vivek Jain. मैं आज एक The Lion and the Mouse स्टोरी बता रही हूँ. Vivek Jain. Once a lion caught a mouse. एक दिन शेर ने चूहे को पकड़ा. The mouse begged the lion not to eat him. और चूहे ने शेर से रिक्वेस्ट की कि मुझे मत खाओ. Someday he said he would help the lion. उसने बोला मैं जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूँगा. The lion said the mouse. उसने चूहे को आजाद कर दिया. Okay? One day the lion got cast in the hunter net. एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया. The mouse came to help lion. तभी वहाँ कौन आया था? चूहा. चूहा ने आके उसकी मदद की. He
कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ। उसने किससे कट किया? हाँ, उसके तीखे दांत से उस नेट को काट दिया। द लायन वॉज सेट फ्री। हाँ, शेर आजाद हो गया। द लायन एंड द माउस बिकेम गुड फ्रेंड। वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स हो गए।